never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
वह व्यक्ति भीड़ में चलते हुए हमेशा थोड़ा पीछे रहता था। उसकी चाल में कुछ थका हुआ सा रुखापन था। नाम था अद्वैत। लोग कहते, यह आदमी भावनाओं से रहित है। कोई हंसे तो वह मुस्कुरा नहीं पाता, कोई रोए तो उसके चेहरे पर भी कोई हरकत नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह थी कि अद्वैत का हृदय भीतर से बहुत कोमल था, इतना कोमल कि दुनिया की कठोरता ने उसे बचाने के लिए पत्थर का खोल ओढ़ने पर मजबूर कर दिया था। अद्वैत एक अध्यापक था, इतिहास का शिक्षक। वह अपने छात्रों को राजाओं के युद्ध सिखाता, पर कभी यह नहीं बता पाता कि युद्ध असल में भीतर भी लड़े जाते हैं। उसका अपना हृदय एक ऐसे युद्ध का मैदान था जहां हर दिन संवेदनशीलता और विवेक की टक्कर होती थी। संवेदनशीलता हर बार रो पड़ती और विवेक कहता, कमजोर मत बन, सूंस के अब में अकौसा है। धीरे धीरे अद्वैत ने अपने भीतर की उस आवाज को दबाना सीख लिया। एक दिन विद्यालय से लौटते समय रास्ते में उसने देखा, एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठे हुए रो रही थी। भीड़ उसके पास से निकल रही थी, किसी ने नहीं देखा। अद्वैत के कदम रुक गए। उसके भीतर कहीं कोई पुरानी ज्वाला हिलने लगी। वह कुछ पल खड़ा रहा, फिर उसने खुद को कहा, मत रुक, यह तेरा काम नहीं, और वह आगे बढ़ गया। लेकिन उस रात जब उसने आंखें बंद कीं, उस औरत का चेहरा बार बार उसकी नींद में उतरता रहा। उसकी सिसकियां हवा में गूंजती थीं और अद्वैत के भीतर किसी बंद दरवाजे पर दस्तक होने लगी। वह करवटें बदलता रहा और तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी पर भीतर तक उतर जाने वाली। तू क्यों भाग रहा है? अद्वैत ने आंखें खोलीं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन भीतर जैसे कोई रोशनी चमक रही थी। उसे लगा यह उसका भ्रम है, लेकिन वही आवाज फिर बोली, जिस संवेदना से तू भागता है वही तेरा द्वार है। वह उठ बैठा, घबराया हुआ। कौन बोल रहा था? उसने दीवारों को देखा, दरवाजा खोला, कोई नहीं था। बाहर हवा बह रही थी, पेड़ की शाखाओं से पत्ते टूटकर जमीन पर गिर रहे थे। लेकिन उसके भीतर जो कंपन था वह किसी साधारण हवा से नहीं था। उसे लगा कोई उसके हृदय के बहुत गहरे हिस्से में दस्तक दे रहा है। अगले दिन वह फिर उसी रास्ते से गुजरा। बूढ़ी औरत अब वहां नहीं थी, लेकिन जमीन पर उसी जगह एक नीले रंग का फूल पड़ा था, मानो किसी ने वहीं पूजा की हो। अद्वैत ने वह फूल उठाया और एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा कि उसकी उंगलियों में कोई कंपन दौड़ गया हो। उसके मन में एक चित्र उभरा, माँ काली का, भीषण नहीं बल्कि कोमल रूप में, आंखों में करुणा पर चेहरे पर असीम शक्ति। वह ठिठक गया। वह बचपन में माँ काली के मंदिर जाया करता था। उसकी माँ श्रद्धा से हर मंगलवार वहां दीप जलाती थी। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद अद्वैत ने उस मंदिर में जाना छोड़ दिया था। उसे लगा था कि ईश्वर ने उसे धोखा दिया। तब से उसने अपनी संवेदना को कमजोरी मान लिया। पर उस दिन वह नीला फूल उसके दिल की किसी दीवार को तोड़ गया, किसी शीशी थी। उसने तय किया वह मंदिर जाएगा। शाम ढल रही थी। मंदिर के आंगन में घंटियां बज रही थीं। अद्वैत ने वर्षों बाद वह माहौल महसूस किया। धूप की खुशबू, जलते दिए की लौ और शंख की गूंज। पर सबसे गहरी चीज थी वह ऊर्जा जो भीतर कुछ जागा रही थी। वह धीरे से माँ काली की मूर्ति के पास गया। मूर्ति पर फूलों की माला थी, लेकिन उसकी नजर माँ की आंखों पर टिक गई। वे आंखें मानो सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। माँ, मैं तो कुछ महसूस नहीं करना चाहता, उसने मन में कहा। क्यों? किसी ने उसके भीतर उत्तर दिया। क्योंकि महसूस करना दर्द देता है। तो क्या तू दर्द से भागकर जी सकेगा? शायद हाँ। नहीं अद्वैत, दर्द से भागना, जिसे जावन से भागना है। वह सन्न रह गया। उसके कानों में यह आवाज किसी और ने नहीं, उसकी ही आत्मा ने दी थी, जिसे माँ काली ने छुआ था। उस क्षण उसके सामने के दिए की लौ कांपी और फिर सीधी हुई। अद्वैत ने देखा, मूर्ति की आंखों से जैसे नीली आभा झिलमिला रही थी और उसके भीतर कुछ पिघल गया। उसकी आंखों से पहली बार पानी निकला। वर्षों बाद वह रोया, लेकिन यह रोना कमजोरी नहीं था, यह था मुक्त होने का आरंभ। उसके आंसू माँ की मूर्ति के चरणों पर गिरे और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। एक शांत लेकिन शक्तिशाली स्पर्श। तू अपने हृदय की संवेदनशीलता से मत डर। अब मैं मोंदने नैश की उस स्पर्श ने कहा,
क्योंकि वही तेरा सबसे बड़ा बल है। उस रात अद्वैत देर तक माँ की मूर्ति के सामने बैठा रहा। भीतर जो दीवारें थीं, वे धीरे धीरे गिर रही थीं। मंदिर का पुजारी आया और बोला, बेटा अब देर हो रही है, घर जा। अद्वैत ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। यह मुस्कान वर्षों बाद आई थी। रास्ते में जब वह लौटा तो हवा में एक अलग सी शांति थी, जैसे कोई भीतर फुसफुसा रहा हो। अब शुरू हो रहा है असली जीवन, जब तू अपनी संवेदनशीलता से भागेगा नहीं, उसे अपनाएगा। और दूर आकाश में चंद्रमा की रोशनी में उसे माँ काली की आकृति दिखी। काली पर शांति से भरी हुई, भीषण पर कोमल, क्रोध में भी ममता और ममता में भी शक्ति। मंदिर से लौटने के बाद उस रात अद्वैत के भीतर जैसे कोई हलचल चल रही थी। उसका शरीर थका हुआ था पर मन नहीं सो पा रहा था। दिए की लौ अब भी उसकी आंखों में थी और माँ काली की आंखों की वह नीली आभा उसके दिल में उतर चुकी थी। उसने खुद से कहा, ये क्या हुआ मुझसे? मैंने तो सिर्फ एक फूल उठाया था और अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भीतर कोई ताला खोल दिया हो। वह अपनी कुर्सी पर बैठा और आंखें मूंद लीं। उसे अपनी माँ याद आई। बचपन में उसकी माँ कहा करती थी, बेटा माँ काली के सामने खड़ा होने का मतलब है खुद से सामना करना। तब वह हंसकर कहता, माँ खुद से सामना करना सबसे कठिन है। और आज वही कठिनाई उसके सामने थी। रात के तीसरे पहर में जब बाहर बारिश शुरू हुई, अद्वैत की आंखें अनायास भर आईं। उसे लगा जैसे हर बूंद उसके दिल की बंद खिड़कियों को थपथपा रही हो। वह उठा, बालकनी में गया और हाथ फैलाकर बारिश को महसूस करने लगा। बूंदों की ठंडक में कोई करुणा थी, कोई संवाद था, जैसे माँ कह रही हो, संवेदना कभी बोझ नहीं होती, वह तो तेरे अस्तित्व की जड़ है। अद्वैत के भीतर कहीं कोई पुराना दरवाजा खुला। वह पेचा फिर वही नीला फूल लेने अपनी मेज पर गया। फूल मुरझा गया था पर उसकी खुशबू अब भी वैसी ही थी। उसने उस फूल को अपनी हथेली पर रखा और आंखें बंद कीं। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई ऊर्जा उसकी हथेली से होते हुए उसके सीने तक जा रही हो। दिल की धड़कन बढ़ गई और तभी उसके भीतर एक दृश्य उभरा, माँ काली का। लेकिन इस बार उनका रूप अलग था। न क्रोध था, न गर्जना, बे मांझी आ में माना, बस शांत नेत्र और एक गहरी मुस्कान। माँ। अद्वैत फुसफुसाया, क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि तू खुद को भूल गया है। माँ की आवाज भीतर से आई। भूल गया कि संवेदनशीलता तेरी कमजोरी नहीं, तेरा अस्त्र है। जब तू दूसरों के दुख को महसूस करता है, तब तू ईश्वर के सबसे पास होता है। अद्वैत के गालों पर आंसू बह निकले। उसने माँ के चरणों में सिर झुका दिया। माँ, मैं डर गया था। मैं सोचता था कि भावनाएं इंसान को तोड़ देती हैं। नहीं मेरे बच्चे, आवाज और कोमल हुई। भावनाएं तो तुझे जोड़ती हैं। जो टूटता है वह अहंकार है, जो बचता है वही तू असली है। अगले दिन से अद्वैत ने अपने भीतर के बदलाव को महसूस करना शुरू किया। वह क्लास में पहले जैसा कठोर अध्यापक नहीं रहा। जब कोई छात्र गलती करता तो वह गुस्सा नहीं करता, बल्कि उसे समझाता। छात्रों को लगा सर बदल गए हैं। एक दिन एक छोटी बच्ची ने कहा, सर आज आपकी मुस्कान असली थी। अद्वैत ठिठक गया। उस छोटे वाक्य ने उसके दिल को छू लिया। कितने वर्षों बाद उसने माँ असली मुस्कान दी थी। वह शाम को फिर मंदिर गया। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब माँ की पुकार सुनाई देने लगी। अद्वैत ने सिर झुकाया। हाँ बाबा, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि माँ क्या चाहती हैं। पुजारी ने उत्तर दिया, माँ चाहती है कि तू दूसरों के दर्द में भागीदारी करे, क्योंकि जो हृदय दूसरों के लिए रो सकता है वही माँ के सबसे पास होता है। इन शब्दों ने अद्वैत की सोच बदल दी। कुछ दिन बाद उसने देखा वही बूढ़ी औरत जो पहली बार रोती हुई दिखी थी, अब मंदिर के द्वार पर बैठी है। उसकी आंखों में थकान थी पर चेहरा शांत था। अद्वैत उसके पास गया, पानी दिया। औरत मुस्कुराई, बेटा तूने माँ की पुकार सुन ली। अद्वैत चौंका, आप जानती हैं, मैं कोई और नहीं, माँ की ही एक छाया हूँ। उसने धीरे से कहा, हर बार जब कोई संवेदनशील आत्मा अपने दिल की आवाज दबाती है, मैं वहां प्रकट होती हूँ, और जब कोई उस आवाज को सुन लेता है, मैं फिर उसी नीले फूल में विलीन हो जाती हूँ।
अद्वैत की आंखों में आंसू थे। वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी मंदिर की घंटियां बजीं और हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। उसने देखा वह औरत वहां नहीं थी, बस वही नीला फूल उसके पास गिरा था। उस रात उसने अपने कमरे में दिया जलाया और उस फूल को अपने सामने रखा। माँ, अब मैं समझ गया। संवेदनशील होना कोई अपराध नहीं है, यह तो आपका दिया हुआ वरदान है। वह आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर हुईं। भीतर माँ की आकृति स्पष्ट होने लगी। हाथों में खड्ग नहीं, पकम्बा से नए ही, बल्कि कमल। चेहरा भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि वात्सल्य से भरा। उन्होंने कहा, संवेदनशीलता वह पुल है जिससे होकर तू मेरे पास आता है। जो दर्द तू दूसरों में महसूस करता है वही तुझे ईश्वर से जोड़ता है। जिस दिन तू बिना डरे उस दर्द को अपनाएगा, उस दिन तू अपनी आत्मा देखेगा। अद्वैत का जीवन अब बदलने लगा था। वह अपने छात्रों से, अपने पड़ोसियों से, यहाँ तक कि खुद से भी नरम होकर बात करता। पहले जो चुप्पी उसके जीवन में दीवार बन चुकी थी, अब वही चुप्पी ध्यान में बदल गई थी। रात को वह माँ के नाम का जाप करता, जय माँ काली। हर बार उस नाम का उच्चारण उसके भीतर एक नई परत खोलता, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को दर्पण में दिखा दिया हो। एक रात ध्यान में उसे एक गहरी दृष्टि मिली। उसने देखा, एक विशाल समुद्र है, काला और अनंत। लहरें उफन रही हैं, पर उनमें शांति आई है। बीच में माँ काली खड़ी हैं। उनके चारों ओर प्रकाश का चक्र घूम रहा है। माँ ने कहा, यह समुद्र तेरी संवेदनशीलता है अद्वैत। जब तू इससे डरता है तब यह तूफान बनता है। जब तू इसे स्वीकार करता है तब यह ध्यान बन जाता है। और फिर माँ ने हाथ उठाया। अद्वैत ने देखा, समुद्र शांत हो गया। वह जाग गया, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अगली सुबह उसने तय किया, वह अपने जीवन को किसी उद्देश्य से जोड़ेगा। वह अनाथ बच्चों के लिए शिक्षण केंद्र खोलने लगा। शुरुआत छोटी थी, पर माँ के आशीर्वाद से सब कुछ बढ़ता गया। हर बच्चे की आंखों में उसे माँ का अंश दिखता। जब कोई बच्चा हंसता तो उसे लगता, यही तो माँ की मुस्कान है। जब कोई बच्चा रोता तो वह उसके बालों पर हाथ फेरता और कहता, मत डर, माँ तेरे साथ है। वह समझ चुका था, माँ काली की भक्ति सिर्फ मंत्र या आरती नहीं है। भक्ति वह करुणा है जो बिना कहे बहती है। वह संवेदनशीलता है जो हर जीवन में ईश्वर को महसूस करती है। एक रात वह अपने केंद्र के बाहर बैठा था। आसमान में घने बादल थे। वह सोच रहा था, क्या यही माँ की लीला है? दुख और करुणा में भी माँ का मार्ग इसी का और छिपा है। तभी उसने हवा में वही नीली आभा देखी। माँ की आवाज आई, ये नाई या एची मेसा आनामतोस के नाई। मेरे बच्चे, हृदय की संवेदनशीलता ही मेरी उपस्थिति है। जो हृदय दुख से नहीं डरता, वह जगत को बदल सकता है। अद्वैत मुस्कुराया। उसके होठों से एक वाक्य निकला, माँ, अब मैं दुख से नहीं डरता, क्योंकि अब मैं तुझ में हूँ। उस रात उसने माँ के चरणों में प्रणाम किया और बोला, माँ, अब मुझे सिखाओ कि इस संवेदना को संसार के कल्याण में कैसे बदलूं। माँ की आवाज आई, यह तो आरंभ है अद्वैत, तेरा हृदय अभी जागा है। अब उसे कर्म में बदलना सीख, क्योंकि जो संवेदनशीलता कर्म बनती है वही भक्ति कहलाती है। सुबह की हल्की किरणें जब अद्वैत के कमरे में पड़ीं तो उसने वर्षों बाद वह शांति महसूस की जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन से आती है। रात में माँ काली की वाणी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, जो संवेदनशीलता कर्म बनती है वही भक्ति कहलाती है। वह उठा और खिड़की से बाहर देखा। आसमान बादलों से ढका था, पर हवा में एक गहराई थी। उसे लगा जैसे माँ स्वयं उसे पुकार रही हो, चल, अब तू दुनिया के दुख में उतर। अद्वैत ने उसी दिन तय किया कि उसकी संवेदना अब केवल विचार नहीं रहेगी, बल्कि क्रिया बनेगी।
उसने अपने स्कूल से छुट्टी ली और शहर के उन इलाकों में जाना शुरू किया जहां बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे। वे बच्चे जो सड़क पर, चाय की दुकानों में, कूड़ा बीनने में अपना बचपन खो देते थे। पहले दिन वह एक छोटे मोहल्ले में पहुंचा। तंग गलियां, दीवारों पर उखड़ी हुई पुताई और हवा में धूल। कुछ बच्चे एक टूटी हुई गेंद से खेल रहे थे। अद्वैत उन्हें देखता रहा। उन बच्चों की आंखों में जीवन था, पर उनके पास कोई दिशा नहीं। वह पास गया, मुस्कुराया और बोला, पढ़ना चाहोगे? बच्चों ने हंसकर कहा, स्कूल में मास्टर जी डांटते हैं, हमें नहीं पढ़ना। अद्वैत तर्क ने कहा, तो चलो, आज मैं डांटूंगा नहीं, बस सुनना। वह मिट्टी पर बैठ गया और मिट्टी में उंगली से अक्षर बनाने लगा। बच्चों ने कौतूहल से देखा। ये क्या बना रहे हो? ये तुम्हारा नाम है, अद्वैत ने कहा। एक बच्ची ने पूछा, हमारा नाम मिट्टी में क्यों लिखा? अद्वैत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब मिट्टी में नाम लिखा जाता है तो वो फूल बन जाता है। बच्चे हंस पड़े और उस हंसी में कुछ ऐसा था जो माँ काली के आशीर्वाद जिते जैसा ऐसा लगा, जीवन से भरा, सरल और पवित्र। उस दिन से अद्वैत हर शाम उन्हीं गलियों में जाने लगा। वह वहां बच्चों को अक्षर, कहानियां और जीवन के छोटे छोटे अर्थ सिखाता। धीरे धीरे वहां एक छोटा सा समूह बन गया, दीपक केंद्र। यह केंद्र न मंदिर था न स्कूल, यह तो संवेदना का मंदिर था। एक दिन बारिश हो रही थी, बच्चे छत के नीचे इकट्ठा थे। अद्वैत ने उनसे कहा, बच्चों क्या दाम है? नेता, बच्चों क्या तुम जानते हो बारिश क्या सिखाती है? सब चुप रहे। वह बोला, बारिश सिखाती है कि आकाश भी रोता है, लेकिन उसके आंसू जीवन बनाते हैं। सब बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। तभी एक छोटा लड़का बोला, सर, क्या माँ काली भी रोती हैं? अद्वैत ठिठक गया। उसने धीरे से कहा, हाँ बेटा, जब हम एक दूसरे के दर्द को नहीं समझते तब माँ की आंखों में भी नमी आती है। क्योंकि माँ काली सिर्फ शक्ति नहीं है, वे करुणा है, संवेदना है। को माने पापा माँ है। वह वाक्य सुनकर बच्चों ने चुपचाप सिर झुका लिया। उस क्षण अद्वैत को एहसास हुआ, मैं पढ़ा नहीं रहा, माँ मुझसे कहलवा रही हैं। उसके भीतर एक सिहरन दौड़ गई, जैसे माँ उसके कर्म के हर क्षण में जीवित हों। रात में जब वह घर लौटा, उसने दिया जलाया और माँ की मूर्ति के आगे बैठा। माँ, मैंने आज बच्चों में तेरा रूप देखा, उसने कहा। हर हंसी में, हर मासूमियत में, हर सवाल में तू थी। माँ की आवाज भीतर से आई, जब तू दूसरों में मुझे देखने लगेगा तब तू सच्चा भक्त बनेगा। भक्ति केवल पूजा नहीं, सेवा है, और सेवा केवल दान नहीं, संवेदना है। अद्वैत ने सिर झुकाया। माँ, मैं समझता जा रहा हूँ कि तू मुझे कर्म की राह पर क्यों भेज रही है, लेकिन क्या इस राह में मैं अकेला रहूंगा? नहीं, आवाज ने उत्तर दिया। हर बार जब तू दूसरों के लिए रोएगा, मैं तेरे आंसुओं में रहूंगी। उसके दिल में यह वाक्य अंकित हो गया। उसे लगा उसकी संवेदनशीलता अब केवल भाव नहीं, वरदान बन गई है। कुछ महीनों में दीपक केंद्र बढ़ने लगा। शहर के और लोग जुड़ने लगे। कोई किताबें देने आया, कोई समय देने लगा। अद्वैत ने महसूस किया, जब संवेदना कर्म में बदलती है तो ब्रह्मांड खुद साथ देने लगता है। एक दिन एक धनी व्यापारी आया और बोला, अद्वैत जी, मैं आपके केंद्र को चंदा देना चाहता हूँ। अद्वैत ने मुस्कुराकर कहा, धन का स्वागत है, पर पहले दिल से जुड़िए। अगर आपकी आंखें उन बच्चों के दर्द को महसूस नहीं कर सकती तो पैसा भी व्यर्थ है। व्यापारी चौंका, फिर सिर झुका लिया। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, पहले मैं आकर बच्चों के साथ रहूंगा। उस दिन अद्वैत ने समझा, संवेदना शब्द नहीं, असर है। जब वह सच्ची होती है तो हर आत्मा को छू जाती है। रात के समय अद्वैत अकेला बैठा था। बाहर हवा बह रही थी। वह ध्यान में गया। धीरे धीरे उसके सामने माँ काली प्रकट हुई। इस बार हाथ में कोई हथियार नहीं, बल्कि कमल था। माँ ने कहा, मेरे बच्चे, तूने अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न किया है, पर अभी तू केवल देने की शक्ति जानता है। अब तुझे स्वीकार की शक्ति सीखनी होगी। अद्वैत ने पूछा, स्वीकार? हाँ, माँ ने कहा। जब तू दूसरों का दुख देखता है तो उसे बदलने की चाह में तू जलता है, पर कभी कभी दुनिया तुरंत नहीं बदलती। उस प्रतीक्षा को, उस असफलता को स्वीकार करना भी संवेदनशीलता का एक रूप है। संवेदना का अर्थ केवल करुणा नहीं,
सहनशीलता भी है। अद्वैत ने आंखें खोलीं। माँ गायब थीं, पर उनके शब्द गूंज रहे थे। संवेदना को सहन करना, यही साधना है। अगले हफ्तों में उसे यह बात सच में समझ आई। केंद्र में एक बच्ची थी, रेखा। वह बहुत चुप रहती थी। अद्वैत ने जाना कि उसके पिता शराबी हैं और हर रात घर में झगड़ा होता है। वह बच्ची कक्षा में कुछ नहीं बोलती थी, बस कोने में बैठी रहती। एक दिन अद्वैत उसके पास गया और बोला, रेखा, आज कुछ पढ़ाओ मुझे। वह हैरान हुई। मैं आपको? हाँ, मुझे सिखाओ कि चुप रहना कैसे सीखा जाए। रेखा की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस अद्वैत के हाथ पकड़ लिए। उस क्षण अद्वैत को माँ का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे माँ कह रही हो, यही कर्म है मेरे बच्चे, किसी के दर्द को शब्दों में नहीं, मौन में महसूस करना। केंद्र अब उसकी तपस्या बन गया था। लोग उसे समाज सेवी कहते, पर वह जानता था वह केवल माँ का दूत है। रात को वह माँ से कहता, माँ, अब मैं जान गया हूँ कि संवेदना का अर्थ केवल रोना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए खड़ा होना है, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों न हो। माँ की आवाज आई, यही तो कर्म का सार है। जब संवेदना से कर्म जन्म लेता है, तब ईश्वर कार्य करता है। एक रात अद्वैत बहुत थक गया था, शरीर दर्द कर रहा था। वह माँ की मूर्ति के आगे गिर पड़ा और बोला, नहीं माँ, अब मुझ में शक्ति नहीं बची, क्या मेरी संवेदना ही मुझे जला देगी? माँ ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, जब अग्नि ईंधन को जलाती है तब प्रकाश देती है। तेरी संवेदनशीलता वह अग्नि है जो तेरे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल रही है। मत डर, तेरा हर आंसू अब मेरी आरती का दीपक है। उसके चेहरे पर शांति उतर आई। उसने कहा, माँ, अब मैं तेरा कार्य करूंगा, चाहे दुनिया मुझे समझे या न समझे। दिन गुजरते गए। अद्वैत का कर्म और माँ की कृपा एक साथ बढ़ते गए। उसका चेहरा अब अलग था। वहां करुणा थी, पर साथ ही एक दिव्य दृढ़ता भी। लोग कहते, माँ आते, इस आदमी में कोई अलौकिक ऊर्जा है, पर वह जानता था यह मेरी नहीं, माँ की उपस्थिति है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, उसने मंदिर के आंगन में माँ के सामने कहा, माँ, अब मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे देखें, मैं चाहता हूँ कि हर किसी में तेरा रूप दिखे। हवा चली और नीले फूल उसकी गोद में गिर पड़े। माँ की आवाज आई, अब तेरे हृदय की संवेदनशीलता कर्म बन चुकी है, अब तू मेरे स्वरूप का दर्पण है। गांव के उस शांत किनारे पर अब सूरज हर दिन थोड़ा अलग ढलने लगा था। अद्वैत के चेहरे पर एक ऐसा प्रकाश आने लगा था जो पहले कभी नहीं था। उसके भीतर की बेचैनी माँ काली के चरणों में समर्पित हो चुकी थी। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी, क्योंकि जब आत्मा जगने लगती है तब भीतर के सबसे गहरे दर्द भी उजागर होते हैं। उस रात जब पूरा गांव सो गया था, अद्वैत का मन फिर से तड़प उठा। वह अपने पिता की आवाजें सुन रहा था। वही डांट, वही अपमान, वही न समझ पाने का दुह। कई बरसों से वह अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी समझता आया था, पर माँ काली ने जो प्रेम दिया था, उसने उसके भीतर एक नई दृष्टि दी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि संवेदनशीलता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे सुंदर ध्वनि है, जिसे सुनने के लिए बहुत साहस चाहिए। वह उठा और मंदिर की ओर चल पड़ा। आकाश में काली घटाएं थीं, उकौहा माते आँख अमानेती है, और देता दूर से बिजली कौंध रही थी। माँ काली की मूर्ति के आगे दीपक धीमे धीमे टिमटिमा रहा था। अद्वैत ने हाथ जोड़े, पर इस बार वह कुछ मांगने नहीं आया था, वह बस अपनी सच्चाई कहने आया था। माँ, उसकी आवाज टूटी, मैं अब समझ रहा हूँ कि मेरे भीतर जो कोमलता है वही तो आपने दी थी। मैंने दुनिया के डर से उसे छिपाया, और जब मैंने उसे दबाया तब मैं खुद से दूर हो गया। माँ, क्या यही कारण था कि मैं कभी शांति नहीं पा सका? माँ काली की मूर्ति के सामने एक गहरी निस्तब्धता छा गई। अचानक दीपक की लौ तेज हुई और एक क्षण के लिए पूरी मूर्ति मानो जीवंत हो उठी। वह अग्नि, वह कंपन, कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। अद्वैत ने महसूस किया कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। कोई ऐसी उपस्थिति थी जो भय नहीं, बल्कि अनंत करुणा से भरी हुई थी। वह भीतर गिर पड़ा और रोने लगा, बिना शब्दों के, बिना सोच के। वह रोया क्योंकि वर्षों से उसने अपने भीतर की करुणा को कैद कर रखा था।
वह रोया क्योंकि समाज ने उसे सिखाया था कि पुरुष को रोना नहीं चाहिए, और उसने उस झूठ को अपना सच मान लिया था। माँ काली की ऊर्जा उसके भीतर उतरने लगी। अद्वैत का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब दर्द नहीं थे, वे किसी अदृश्य स्नान जैसे थे जो उसकी आत्मा को शुद्ध कर रहे थे। वह उठा और बोला, माँ, अब मुझे समझ आ गया है। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति का प्रमाण है। यह वही शक्ति है जो किसी को टूटते हुए भी करुणामय रखती है। उसके शब्द हवा में गूंज उठे। माँ काली के गर्भगृह में हल्की सी सुगंध फैल गई, जैसे कोई अदृश्य पुष्प वहां खिल उठा हो। अगले दिन जब अद्वैत गांव लौटा तो उसने पाया कि लोग उसकी और अब अलग दृष्टि से देख रहे थे। कोई डर नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान था। वह अब भी वही था, पर उसके भीतर कुछ ऐसा था जो सभी को महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में एक अदृश्य शांति थी जो दूसरों के हृदय को भी स्पर्श करने लगी। गांव की एक वृद्धा जो कई वर्षों से बीमार थी उसके पास आई और बोली, बेटा, जब तू बोलता है तो मेरे भीतर कुछ हल्का हो जाता है। क्या तू सच में माँ काली से मिला है? अद्वैत मुस्कुराया। नहीं दादी, मैं सिर्फ उनके प्रेम को पहचान पाया हूँ। बाकी वो तो सबके भीतर ही हैं, बस हम महसूस नहीं करते। वृद्धा की आंखें भर आईं। वह बोली, तो तू अब लोगों को यह सिखाएगा? अद्वैत ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं सिर्फ दिखाऊंगा कि कैसे माँ की करुणा हर दिल में छिपी है, बस उसे देखने की जरूरत है। उस शाम गांव के लोग एकत्र हुए। अद्वैत ने पहली बार माँ काली के नाम पर एक संवेदन सभा रखी, जहां किसी से कुछ मांगने की जगह सभी को अपने मन की बात कहनी थी। लोग आए, कोई अपने टूटे रिश्ते लेकर, कोई अपनी हारी उम्मीदें लेकर, और कोई बस चुप्पी लेकर। अद्वैत ने कहा, माँ काली से डरना बंद करो। वह विध्वंस नहीं, रूपांतरण की देवी है। वह जो तोड़ती हैं वह झूठ है, वह जो छोड़ती हैं वह भ्रम है, और जो बचता है वह हमारी सबसे पवित्र संवेदना है। लोग सुनते रहे। कुछ की आंखें भर आईं, कुछ के चेहरे पर मुस्कान थी। गांव के उस छोटे से चौपाल में हवा में माँ काली की उपस्थिति घुल चुकी थी। रात को अद्वैत फिर मंदिर गया। वह बोला, माँ, आज मैं समझ गया कि संवेदनशीलता सिर्फ अपने दर्द को महसूस करना नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द में भी खुद को देखना है। यह वही शक्ति है जो किसी को कठोर दुनिया में भी कोमल बनाए रखती है। वह झुका और फिर बोला, अब मैं हर उस आत्मा को समझने की कोशिश करूंगा जो चुप है, जो कमजोर दिखती है, क्योंकि वहीं आप सबसे ज्यादा जीवित हैं। उस पल माँ काली की मूर्ति से हल्की सी नीली ज्योति निकली और अद्वैत के हृदय में उतर गई। वह ज्योति स्थायी थी, क्योंकि अब माँ काली ने अपने भक्त को केवल आशीर्वाद नहीं, एक उद्देश्य भी दे दिया था। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब हृदय संवेदनशील बनता है तो वह सिर्फ दूसरों का दर्द नहीं महसूस करता, बल्कि कभी कभी पूरी पृथ्वी का कंपन भी सुनने लगता है। और अब अद्वैत का सफर उस स्तर पर पहुंचने वाला था जहां संवेदना एक वरदान बनकर उसे मानवता के गूढ़ रहस्य सेठी अके और तिकास को रहस्य से मिला देगी।